Assalamu alaikum dear learners, and welcome to lecture 2 of Ababil English level 1. I hope you're really fine, and I'm really happy and excited that you're expressing your zeal and zest and excitement and you're really working hard to submit your assignments. So before we move on to the next lecture, let's talk about a little bit about what we did yesterday. In the last lecture, we talked about present simple tense, its components, and a few very basic things which I'm sure you know. I just wanted to brush up a little on them so that you have a clearer picture of what are we going to use in the next modules. Let's recap a bit. We talked about types and components of the sentences, which means there are 3 types of sentences: affirmative, negative, and interrogative. Affirmative means positive, जिसमें आपको information दे रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में comment कर रहे हैं, कोई भी बात बता रहे हैं. Negative का मतलब है कि आप उसको negate कर रहे हैं या deny कर रहे हैं या उसमें no और not का element add कर रहे हैं. And interrogative of course is questioning sentences, जिसमें आप कोई किसी चीज़ के बारे में information seek out कर रहे हैं, किसी से कोई सवाल कर रहे हैं. उसकी टाइप्स हम आज इंशाल्लाह आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. इसके साथ हमने फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स और टाइप्स ऑफ वर्ब भी डिस्कस किए कि एक्शन वर्ब्स होते हैं, मॉडल वर्ब्स होते हैं. एक्शन वर्ब में अगेन 2 टाइप्स हैं, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है. और तीसरी टाइप ऑफ वर्ब जो थी वो हेल्पिंग वर्ब्स की थी, जो हमारे मेन वर्ब को या एक्शन वर्ब को सपोर्ट कर रहा होता है. इसी तरह 3 फॉर्म्स हैं जो हम डिफरेंट टेंसेस में यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल प्रेजेंट टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म अगर यूज़ करें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में अगर हम ing लगा देते हैं उसके साथ, पास्ट में हम उसी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं डिपेंडिंग ऑन द टेंस दैट वी आर यूजिंग. इसी तरह हमने प्रेजेंट सिंपल के बारे में भी पढ़ा कि उसके सेंटेंसेस में क्या कॉम्पोजिशन होती है. Before we continue to our next lecture, let's recap what are the ingredients and how did it work. For example, I said in the last video that it's composed of a subject. The first part is subject. The subject could be a first person, a second person, or a third person. And we use do and does with that subject depending on whatever subject we are using. For example, we use do with I, we, you, and they, and we use does with he, she, and it. After the subject comes the helping verb, and because we're talking about present simple tense, so we'll use do or does. Then comes the verb, which is main verb or action verb, and it tells whatever is going on and whatever we are going to talk about. And then comes the object. Sometimes object is there and sometimes it's not, but even if it's not, the sentence is pretty clear depending on the situation that you're talking about and giving the information about. We talked about affirmative sentences, which means you use s or es with the verb always. And if you talk about the negative sentences, then we use do or does depending on the subject, but we do not use es or es with the verb, whatever the case is. Let me give you an example. For example, I talk about my own self and I say I do not like to eat apples. Now understand that like, the word like here is the verb, and I have not used s or es because I'm talking about myself. What if I talk about my friend Mariam? Let's use it in a sentence. Mariam likes to do painting. Now understand that I have added s with the like, which is verb, and I have not used do or does because it's not needed here. What if I talk about a negative sentence of this? Mariam does not like to go to school. Now see the difference. Mariam does not like to go to school. I have added does, but now no s or es with the verb. And also we talked about first, second, and third person. This picture is quite self-explanatory, which means first person is I and we. I is singular first person. We, which means group of people, जिसको उर्दू में हम कहते हैं, this is plural first person. Plural का मतलब है कि एक से ज़्यादा, group of people. सेकेंड पर्सन में सिर्फ यू है. यू को आप
एक इंसान के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, विच मीन्स सिंगुलर सेकंड पर्सन भी यू है और प्लूरल सेकंड पर्सन भी यू हो सकता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी सेकंड पर्सन से मुखातिब हूँ जो मेरे सामने मौजूद है और मैं से कह रही हूँ यू नीड टू डू दिस असाइनमेंट ASAP. ऑल्सो if I'm addressing you all people in the Ababil WhatsApp group, I can address you all as a you, and it means plural second person, and it would be grammatically correct. For example, if I say you all need to do this assignment ASAP, this is grammatically correct. तो you singular और plural दोनों तरह से use हो सकता है. उसके बाद है third person. Third person में we're talking about a person which is probably here or not here, but he is third person. For example, he, she, it, and they. They is of course group of people. He or she is used for male and female respectively, and it is used for inanimate or non-living objects. या animals के साथ भी हम it ही लगाते हैं. तो ये हमारे पास है third person. Now that we have talked about the ingredients और हमने recap कर लिया जो हमने कल के lecture में cover किया था, let's talk about interrogatives जो हमने कल नहीं किए थे. इंटरोगेटिव्स के अलावा जो दो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस थे पॉजिटिव और नेगेटिव, हमने उनका स्ट्रक्चर देख लिया. इंटरोगेटिव्स का स्ट्रक्चर देखने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि वो कितने टाइप्स के सवाल हो सकते हैं. अब मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टूडेंट्स का ये परसेप्शन होता है कि सवाल तो एक ही तरह के होते हैं, सवाल तो सवाल होते हैं, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन पूछी होती है लेकिन उसको पूछने का एक तरीका है. फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में पेपर देते हो तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं. कुछ क्वेश्चंस के आपने शॉर्ट जवाब देने होते हैं, कुछ के आप लॉन्ग आंसर्स लिखते हो, कुछ MCQs हैं, ट्रू फॉल्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं. तो ये डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं. इसी तरह जब हम ग्रामेटिकल पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो उसमें 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं. फर्स्ट इज सिंपल क्वेश्चन और इसको येस नो क्वेश्चन भी कहते हैं. फॉर एग्जांपल ये एक क्लोज एंडेड सवाल है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन हैं जिसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में हो सकता है. फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू डू यू लाइक ऑरेंजेस एंड यू वुड से येस आई डू और नो आई डोंट, और येस आई लाइक ऑरेंजेस, यानी आप सिर्फ येस भी बोल सकते हैं, येस आई डू भी बोल सकते हैं, नो आई डोंट भी बोल सकते हैं, नो आई डोंट लाइक ऑरेंजेस. इसका जवाब देने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है समझने के लिए यहाँ पे वो ये है कि आप सिंपल येस नो क्वेश्चन के आंसर में हमेशा येस या नो से बात स्टार्ट करोगे. फॉर एग्जाम्पल डू यू लाइक टू जॉग, येस आई डू, और नो आई डोंट, और येस आई डू लाइक टू जॉग. अगर आपने उसके ऊपर एम्फेसिस जोर दे के उसको बताना है, आपने उसके ऊपर स्ट्रेस देना है तो आप उसमें डू ऐड करते हो, अदरवाइज आप उसमें डू भी ऐड नहीं करते. येस आई डू सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में येस आई डू बोलेंगे, अगर फुल फॉर्म आपने पूरा सेंटेंस बोलना है तो आप कहेंगे येस आई लाइक टू जॉग. सेकंड क्वेश्चन टाइप है हमारे पास स्पेशल क्वेश्चंस की. स्पेशल क्वेश्चंस का क्या मतलब है कि उसमें WH वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, हु, होम, इस तरह से. इसकी एग्जांपल हम अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे. थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आप जिससे क्वेश्चन कर रहे हैं उस पर्सन को आप चॉइस देते हो टू चूज़ फ्रॉम कि आपने ये लेना है या ये लेना है. इसकी एग्जांपल भी हम अभी आगे डिस्कस करते हैं. फोर्थ टाइप है आपके पास टैग या टेल क्वेश्चंस की. टैग या टेल क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और उनके आंसर्स आप कैसे दे सकते हैं. लेट्स मूव. ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट देयर स्ट्रक्चर्स. नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस जो हम प्रेजेंट सिंपल में बनाते हैं, दोबारा से उसको रिकैप करते हैं. उसमें पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आपके पास हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद वर्ब यूज़ करते हैं और उसके बाद यूज़ करते हैं आप ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल Sarah called her mother every day, or Sarah calls her mother every day. I'm sure कि आपने प्रोजेक्ट वर्क में जो एक्सरसाइज की है, अब आप you're able to tell कि इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है. Just give it 1 second and think about it कि इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली ठीक है और कौन सा नहीं ठीक. And I'm sure you've reached the answer. जब आप थर्ड पर्सन के बारे में बात करें, चाहे उसके साथ ही शी लगा रहे हैं या थर्ड पर्सन का नाम लगा रहे हैं, कोई नाउन लगा रहे हैं, जब आपको पता है कि ये फर्स्ट और सेकंड पर्सन नहीं है, कोई थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो उसमें हमेशा वर्ब के साथ एस या ईएस ऐड होता है. सो Sarah called her mother every day is wrong.
it's incorrect, and Sarah calls her mother every day is grammatically correct. जब आप इसको क्वेश्चन बनाएंगे तो आप थोड़ी सी तरतीब चेंज कर देंगे. कैसे? हेल्पिंग वर्ब जो सेकंड नंबर पे आ रहा था वो आपके पास अब फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, और उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा विच इज़ फॉलोड बाय द मेन वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट एंड ऑफ कोर्स द क्वेश्चन मार्क. सिर्फ इसमें थोड़ी सी तरतीब आपने शफल कर दी इंग्रेडिएंट्स की. पहले सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आ रहा था, अब आपने इनको उलट कर दिया. आपने पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट. Let me explain with an example. Do you go to college every day? Do is a helping verb in present simple. You is a subject. Go is a verb, and college is an object. And every day, of course, shows that we are talking about present simple because it's a routine. And of course, this sentence is grammatically correct because I'm using do with the subject you. I'm not using does you go to school because that would be wrong. जैसे हमने भी पिछली स्लाइड में बात की कि you, I, we, they और you के साथ हमेशा do आएगा, इनके साथ कभी भी does नहीं आएगा. Okay, here's another example. Do he go to the gym in the evening? Now, you are going to guess what is wrong with this sentence. And what if I say, does he watch the drama? इन दोनों में से सब्जेक्ट को देख के बताएं कि इसमें डू और डज में से कहाँ पर मिस्टेक है. एंड आई एम श्योर दैट यू हैव गेस्ड इट राइट. डू ही गो टू स्कूल इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बिकॉज जब आपने ही सब्जेक्ट यूज़ किया जिस थर्ड पर्सन, आप उसके साथ हमेशा डज लगाओगे, कभी भी डू नहीं आएगा उसके साथ. और यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस है डज ही वॉच द ड्रामा. एंड इफ़ यू नोटिस मैंने डज ही वॉच के बाद वॉच के साथ एस या ई एस नहीं लगाया बिकॉज मैं डू के साथ ऑलरेडी ई एस लगा के उसको डज बना चुकी हूँ. तो मुझे वर्ब के साथ कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. डज ही वॉच द ड्रामा, डज ही लाइक टू प्ले, डज ही लाइक टू स्लीप एट नाइट, इस तरह. सेकंड हमने क्वेश्चंस की बात की थी, स्पेशल क्वेश्चन है. उसमें भी आपके पास इंग्रेडिएंट्स शफल नहीं होंगे, सिर्फ रिप्लेस हो जाएगा. हमने हेल्पिंग वर्ब सिंपल क्वेश्चंस के शुरू में लगाया था, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की जगह आपके WH वर्ड्स आ जाएंगे. WH वर्ड्स के बाद सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय वर्ब विच इज फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज माई बैग. आपने अगर उर्दू में किसी चीज़ के बारे में इंक्वायर करना है या पूछना है तो आप कहेंगे मेरा बैग कहाँ है. उसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, वेयर इज माई बैग. अगर आपने इसको मोर कोलोकियली बोल रहे हैं उर्दू में, फॉर एग्जांपल आप अपने किसी सिबलिंग से पूछ रहे हैं कि आपने मेरा बैग कहाँ फेंका, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? वेयर डिड यू डंप माई बैग. आपने मेरा बैग कहाँ फेंक दिया था. बट बिकॉज इट्स यूजिंग डिड, इट्स अबाउट द पास्ट टेंस, तो हम इसको पास्ट सिंपल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल व्हिच इज हु स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग योर असाइनमेंट. इसमें आप नोट करें कि मैंने WH वर्ड से स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने स्टॉप्स के बाद मैंने यू लगाया विच इज़ द सब्जेक्ट, और डू इज़ द वर्ब, ING लगाया है, और साथ में असाइनमेंट इज़ द ऑब्जेक्ट. सो ING यहाँ पे जो लगा है मुझे बता रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है, तो इसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. बट जो फॉर श्योर थिंग है वो WH वर्ड्स का इस्तेमाल है इन forming the questions. Third type of question was जिसमें आप choices देते हैं. Choice देने का क्या मतलब है? उसमें आप again वैसे ही simple question जैसा ingredient लगाएंगे. कैसे? helping verb के बाद आपका subject के बाद verb के बाद आपका object. लेकिन यहाँ पे it's not end of the story. आगे क्या हो रहा है? आप एक और ऐड करेंगे, OR, जो हमेशा ऑप्शंस देने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसको उर्दू में आप या कहते हैं, विच मीन्स देयर आर 2 or more थिंग्स एंड यू हैव टू चूज वन ऑफ दम. एंड और के बाद आप दूसरा ऑब्जेक्ट या दूसरी चीज़ लगा के उसके बाद क्वेश्चन मार्क से उसको ख़त्म करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, डू यू लाइक बनानास और ग्रेप्स. यू आर गिविंग 2 ऑप्शंस टू द अदर पर्सन and he has to choose one between these 2 options. Another example, does he sing or dance? Do they play basketball or hockey?
इस तरह से आप 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों की चॉइस दे रहे हैं और ऐड करके, और the other person is going to choose one of them. Last and very interesting question type is tag question or tail questions. और ये नेटिव अमेरिकन अपने colloquial expression में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. इसको आप कैसे फॉर्म करोगे? टैग या टेल क्वेश्चंस को कुक करने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं सब्जेक्ट, एंड आई नो दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज, इट्स एन एक्सेप्शन बिकॉज हम सब्जेक्ट जो है वो तो अफर्मेटिव में सबसे पहले लगाते हैं, क्वेश्चंस में तो हम पहले हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड लगा रहे हैं, तो दिस इज़ एन एक्सेप्शन. लेकिन अभी हम पढ़ेंगे कि ये कैसे फॉर्म होता है. सबसे पहले सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट. लेकिन दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी. ऑब्जेक्ट के बाद आप लगाएंगे एक कॉमा के बाद आप जिस टेंस के साथ भी आप वर्क करें, फॉर एग्जांपल अभी वी आर वर्किंग विद प्रेजेंट सिंपल, तो उसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैं 2, डू और डज. तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे लेकिन नेगेटिव. फॉर एग्जांपल डू लगाना है हमने तो डोंट लगाएंगे या डू नॉट कहेंगे उसको, और अगर डज लगाना था हमने तो अब हम उसको डज नॉट या डजंट कहेंगे. डजंट और डोंट उसकी कॉन्ट्रैक्शंस हैं, शॉर्ट फॉर्म्स हैं उसकी, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में भी एक बॉक्स में देखी थी. नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद आप लगाएंगे सब्जेक्ट दोबारा से, और उसके बाद ऑफ कोर्स द क्वेश्चन मार्क. इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला के हमको करें टैग क्वेश्चंस या टेल क्वेश्चन. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, उससे क्लियर हो जाएगा. Weather is cold outside, isn't it? This is a tag जो आप एंड पे लगा रहे हो. तो इस क्वेश्चन के 2 हिस्से होते हैं. पहला हिस्सा है जिसमें आप एक पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस बना के एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हो. कॉमा लगाने के बाद आप उसके साथ टैग लगा देते हो. टैग लगाने का मतलब है कि आप दूसरे से कंफर्मेशन चाह रहे हो कि ऐसा ही है ना. फॉर एग्जाम्पल, वेदर इज़ कोल्ड आउटसाइड, इजंट इट? बाहर मौसम बहुत ठंडा है ना? ये इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है. ओके, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल व्हिच इज यू लाइक हॉट चॉकलेट, डोंट यू? आपको हॉट चॉकलेट बहुत पसंद है ना? तो वो जो है ना हम उर्दू में कहते हैं, वो उसका इंग्लिश में हम उसका टैग बना देते हैं. फॉर एग्जांपल, हमने पहले एक स्टेटमेंट दिया, यू लाइक हॉट चॉकलेट, प्रेजेंट सिंपल का सिंपलेस्ट सेंटेंस है. सब्जेक्ट है, उसमें हेल्पिंग वर्ब है और ऑब्जेक्ट है. और उसके बाद कॉमा लगा के हमने नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब लगा के सब्जेक्ट दोबारा बोला. सब्जेक्ट जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट यू था, तो हमने डोंट के बाद दोबारा यू लगाया और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाया. एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी, विच इज़ ही लाइक्स टू प्ले पियानो, डजंट ही? अब यहाँ पे गौर करें कि मैंने यू के साथ डोंट लगाया था और ही के साथ मैंने डजंट लगाया है, विच मीन्स यू डोंट, यू डू और यू डोंट, ही डज और ही डजंट. तो इसलिए मैंने ही के साथ डोंट नहीं लगाया, ही के साथ डजंट लगाया. नेटिव अमेरिकन अपनी स्लैंग लैंग्वेज में, जो स्ट्रीट लैंग्वेज है, उसमें ही के साथ डोंट लगाते हैं. इट्स क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि आप कोई भी सॉन्ग अगर सुन रहे हैं और उसमें उन्होंने कोई बहुत ही हिप हॉप टाइप का या रॉक टाइप का सॉन्ग है, उसमें शायद आप लिरिक्स में या किसी मूवी में कभी अगर कोई स्लैंग में या कोई डाउनटाउन स्ट्रीट में कोई लोग बात करें, तो उसमें मे भी पॉसिबिलिटी ये है कि आप सुने ही के साथ डोंट इस्तेमाल होता हुआ. ही डोंट लाइक टू प्ले पियानो, शी डोंट लाइक टू प्ले पियानो. लेकिन जो ड्राइंग रूम लैंग्वेज है या जो फॉर्मल इंग्लिश है, जिसको आप डिसेंट इंग्लिश कह रहे हैं, जो आपकी अक्रॉस द वर्ल्ड प्रोफेशनल सेटिंग में, कॉर्पोरेट सेटिंग में यूज़ हो रही है, उसमें आप कभी भी ही के साथ डोंट नहीं लगाते. वो एक स्लैंग है जो आप जो नेटिव अमेरिकन अपनी स्लैंग लैंग्वेज में या स्ट्रीट लैंग्वेज में यूज़ करते हैं. ऑलराइट, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैंने जो WH वर्ड्स की बात की थी उनकी मैंने लिस्ट भी यहाँ पे अटैच कर दी है ताकि आप उसको देख सकें. और हमें ऑफ कोर्स इन सब का मतलब पहले से पता ही है, ये सिर्फ एक रिवीजन के लिए आपको मैंने यहाँ पे दे दिया ताकि अगर आपको किसी के यूज़ के बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो वह आप यहाँ से चेक कर सकते हो. और ये जो मैंने यहाँ पे FYI लिखा है, दिस इज़ शॉर्ट फॉर्म फॉर योर इन्फॉर्मेशन. ये आप अपने ईमेल्स में भी लिखते हैं. ईमेल्स में हम कुछ और भी इंटरेस्टिंग
एब्रीवेशंस यूज़ करते हैं वो भी हम इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर्स में इंक्लूड करेंगे। FYI आप किसी ऐसी चीज़ के लिए यूज़ करें जिसके बारे में आप बात कर रहे थे और आप फर्दर रेफरेंस के लिए कि अगला कंफ्यूज ना हो जाए तो आप एक फर्दर रेफरेंस या रीडिंग के लिए चीज़ अटैच कर देते हो या लिख देते हो और आप साथ उसके ये टैग लगा देते हो कि FYI कि आई एम श्योर यू नो बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये आप ईमेल कम्युनिकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे अगर पिछली स्लाइड्स में अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने एवरीडे की बात की थी और मैंने कहा था कि वी आर यूजिंग एवरीडे बिकॉज इट्स क्वाइट ऑब्वियस दैट वी आर वर्किंग विद प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो उसमें रूटीन की बात हो रही होती है। अब आपको ये एक कन्फ्यूजन आई एम श्योर होती होगी कभी कि एवरीडे को हमने जोड़ के लिखना है या अलग अलग लिखना है, क्या ये एक वर्ड है या एवरी और डे दो अलग वर्ड हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ऐड की है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, एवरी डे आई करेक्ट एवरी डे राइटिंग मिस्टेक्स। इसमें क्या फ़र्क है? एवरी डे का मतलब है ईच डे, हर दिन, और जो एवरी डे आप ज्वाइन करके लिखते हो उसका मतलब है कि कोई चीज़ हैबिचुअल है, कोई चीज़ रूटीन में होए जा रही है, रोज़ होती है। सो हर दिन मैं रोज़ाना की जाने वाली मिस्टेक्स को सही करती हूँ। एवरी डे आई करेक्ट एवरी डे राइटिंग मिस्टेक्स। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे नीचे एक कंपैरिजन भी ड्रॉ कर दिया। एवरी डे और एवरी डे बोलने में बिल्कुल सेम है, लेकिन लिखने में भी आजकल की जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें इतना ज़्यादा लोग बॉदर नहीं करते हैं। लेकिन जब हम किसी फॉर्मल सेटिंग में ऐसे लिख रहे हैं या हम कोई कंपेटिटिव एग्ज़ाम टेक कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल CSS है या PMS का कोई पेपर है, या आप किसी भी इंस्टीट्यूट में कोई फॉर्मल एग्ज़ाम में बैठे हैं, तो आप वहाँ पे पेपर में अगर एवरीडे जोड़ के या अलग कैसे लिखना है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, उसमें आपको बहुत कॉन्शियस होना पड़ेगा बिकॉज उसमें आपकी मार्क्स की डिडक्शन हो सकती है। तो इसके लिए आपको ये समझना ज़रूरी है। यू मस्ट स्टडी एवरी डे, यानी हर रोज़ आपको हर रोज़ पढ़ना चाहिए इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। या आई प्ले बैडमिंटन एवरी डे, मैं हर रोज़ बैडमिंटन खेलता हूँ। ये जो अलग से एवरी डे है इसका मतलब है हर दिन, ईच डे। लेकिन एवरी डे जो जोड़ के लिखा जाता है उसका मतलब होता है इट्स कॉमन, इट्स रूटीन थिंग, इट्स नथिंग स्पेशल, यू नो, इट्स वेरी कॉमन, इट्स ऑर्डिनरी। आई डोंट थिंक यू शुड वेयर एवरी डे क्लोथ्स टू अ जॉब इंटरव्यू। एवरी डे क्लोथ्स का मतलब है जो आप रूटीन में घर में कपड़े पहनते हैं वो आपको जॉब इंटरव्यू में नहीं पहनने चाहिए। तो ये एक छोटा सा फ़र्क था और ये टिप थी छोटी सी, तो मैंने सोचा ये मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूँ। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द यूजेस ऑफ प्रेजेंट सिंपल। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है और आई एम श्योर इसमें से कुछ आपके लिए बहुत नए भी होंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसको ग्रामर में हम लोग पढ़ते थे, उसका एक बहुत बड़ा और बहुत मशहूर और बहुत कॉमन यूज़ ये है कि बहुत इंस्टेंटेनियस सिचुएशंस के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप क्रिकेट की कमेंट्री सुन रहे हैं तो उसमें, या अगर आप फुटबॉल की कमेंट्री सुन रहे हैं तो उसमें जो भी काम उस वक्त हो रहा होता है उसको आप प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में नहीं कहते। जो नेटिव अमेरिकन हैं जो अपने नॉर्थ अमेरिकन एक्सेंट में वहाँ पे कमेंट्री कर रहे होते हैं, आप कभी भी उनसे ये नहीं सुनेंगे कि ओ नाउ रोनाल्डो इज़ पासिंग द बॉल टू द बेंजीमा। कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे। वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करेंगे, विच मीन्स के सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे अगर वर्ब, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमेशा उसके साथ एस या ES लगाएंगे, ING कभी भी नहीं लगाएंगे। सो वो ये नहीं कहेंगे कि रोनाल्डो इज़ पासिंग द बॉल, वो कहेंगे रोनाल्डो passes द बॉल टू बेंजीमा। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ है और मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट वर्क आपका इसी के ऊपर रिवॉल्व करेगा, विच इज़ कि ये हैबिट्स और रिपीटेड या रेगुलर एक्शंस के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मैं रोज़ाना न्यूज़ देखती हूँ, तो इसको आप उर्दू में इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई लाइक टू वॉच न्यूज़ एवरी डे। आप इसमें कभी भी ING यूज़ नहीं करेंगे या इसमें कोई परफेक्ट टेंस यूज़ नहीं करेंगे, हमेशा प्रेजेंट सिंपल आएगा। फॉर एग्जाम्पल द चाइल्ड ड्रिंक्स मिल्क एवरी डे, ये नहीं कहेंगे द चाइल्ड हैज़ बिन ड्रिंकिंग मिल्क एवरी डे, हमेशा सिंपल प्रेजेंट, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ S या ES नेगेटिव सेंटेंसेस में आएगा, और उसके बाद मिल्क यानी ऑब्जेक्ट और एवरीडे। तो जो भी हमारी हैबिट्स हैं, फॉर एग्जांपल
इफ़ आई आस्क यू टू टेल मी अबाउट योर डेली रूटीन, तो उसमें आप हमेशा प्रेजेंट सिंपल यूज़ करेंगे। ऑलराइट, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस के लिए भी हमेशा यही टेंस यूज़ होता है। अगर आप किसी भी अखबार में देखें या आप न्यूज़ के चैनल्स पे जो नीचे टिकर चल रहे होते हैं वहाँ पे देखें, तो उसमें हमेशा आपको प्रेजेंट सिंपल ही नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल, मैन एंटर्स स्पेस, मैन एंटर्स स्पेस, इसमें एंटर के सिंपल फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ एस लगा दिया। इसमें कभी भी आप न्यूज़पेपर्स में ये नहीं देखेंगे कि येस्टरडे मैन एंटर्ड द स्पेस और मैन इज़ एंटरिंग द स्पेस नाउ। नो, हमेशा सिंपल टेंस यूज़ होगा। उसके साथ नॉन प्रोग्रेसिव्स के लिए भी यही यूज़ होता है। नॉन प्रोग्रेसिव का क्या मतलब है कि आई बिलीव दैट यू आर इनोसेंट। ये कभी भी नहीं कहेंगे कि आई बिलीव दैट यू आर बीइंग इनोसेंट। नो, यू आर इनोसेंट, आई बिलीव दैट यू आर इनोसेंट। जब आप स्टोरीज बता रहे हैं, कोई किस्सा बता रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में कमेंट कर रहे हैं, तो आप हमेशा उसमें भी सिंपल टेंस यूज़ करते हो। सडनली द विंडो ओपन्स एंड द मैस्केट मैन एंटर्स। अनटिल एंड अनलेस आपको रिक्वायर किया हुआ है पेपर में कि आपने स्टोरी बतानी है तो पास्ट टेंस यूज़ करना है। उसके अलावा जब भी आप स्टोरीज़ लिख रहे हैं, आप अखबारों में कोई अगर स्टोरी भी पढ़ लेते हो, जैसे डॉन या नेशन में, या डॉन का वो जो एक यंग मैगजीन आता है, उसमें भी जब आप स्टोरीज़ पढ़ रहे होते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टोरीज़ हमेशा जब आप किसी को नरेट करके सुना रहे हैं तो आप हमेशा उसे सिंपल टेंस में ही सुनाओगे। इसी तरह इसका सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग यूज़ फ्यूचर कंस्ट्रक्शन के लिए, फ्यूचर कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होता है। क्यों? हमने बचपन से ये पढ़ा है और हमने थ्रू आउट द स्कूल एंड कॉलेज जितनी भी हमने ग्रामर पढ़ी है उसमें हम हमेशा पढ़ते हैं कि फ्यूचर टेंस में हमेशा विल और शेल यूज़ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। मॉडर्न इंग्लिश में हम अगर आप न्यूज़पेपर्स भी देखें, मैं उसमें से भी हम एग्जांपल्स इकट्ठी करेंगे कि प्रेजेंट सिंपल कहाँ पे यूज़ हो रहा है। उसमें आप क्या करेंगे, जब आपको पता है कि नियर फ्यूचर में कोई चीज़ होने वाली है और ये फिक्स्ड है, यानी कि ये पेंडिंग नहीं है, पोस्टपोन नहीं हो सकती या डिले नहीं हो सकती, और नियर फ्यूचर में होनी है। नियर फ्यूचर का मतलब है मे बी अ डे लेटर, मे बी अ मंथ लेटर और अ ईयर लेटर। एक साल के अंदर अंदर अगर फ्यूचर प्लान है तो वो नियर फ्यूचर होगा। और आपको पता है कि वो स्केड्यूल्ड है, यानी उसका टाइम फिक्स्ड है, उससे हिलेगा नहीं टाइम, उससे आगे पीछे नहीं होगा। तो उसके लिए आप हमेशा सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। नॉट फ्यूचर, नो विल, नो शेल। कैसे? द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स एट 9 o'clock टुमारो। मैंने ये नहीं कहा द एग्जामिनेशन विल स्टार्ट। विल स्टार्ट ऑब्वियसली अगर कहूँ तो इसके ऊपर कमेंट आ सकता है कि ये भी तो ग्रामेटिकली ठीक है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में जो हम आजकल के दौर में यूज़ कर रहे हैं, जो एक्सेप्टेड है आजकल जो पैटर्न, तो उसमें हम हमेशा फिक्स्ड फ्यूचर प्लान्स, फिक्स्ड नियर फ्यूचर प्लान्स के लिए हमेशा हम एस या ई एस लगा के सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द प्लेन टू दुबई लीव्स एट 7 AM टुमारो। ये मैंने अखबार में एक बहुत बड़ी खबर पढ़ी फर्स्ट पेज पे, तो उसमें भी मैंने नोट किया कि ये प्लेन जो है लीव करेगा कल, विच इज़ फ्यूचर, लेकिन 7 PM पे विच इज़ फिक्स टाइम, तो मैं उसके साथ विल या शेल नहीं लगाऊंगी कि द प्लेन विल लीव टुमारो। नो, द प्लेन लीव्स एट 7 PM टुमारो। और एक बहुत कॉमन इसका यूज़ है जो हम पढ़ते रहते हैं लेकिन शायद हमने नोटिस कभी कभी किया होगा, वो ये है कि जनरल ट्रूथ या कोई साइंटिफिक फैक्ट अगर आपने बताना है तो उसके लिए भी आप सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन राइजेज इन द ईस्ट, ये हम सब ने सुना है कि सूरज हमेशा मशरक से निकलता है। एंड सेट्स इन द वेस्ट। राइजेज और सेट्स दोनों के साथ हमने एस लगा के फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई, विच मीन्स सिंपल टेंस। और वाटर बॉयल्स एट 100 degrees। बॉयल्स के साथ भी एस लगाया। वाटर हमेशा 100 डिग्रीज पे बॉयल होना शुरू होता है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। ये ना 98 पे बॉयल होता है और ना 105 पे, हमेशा 100 डिग्रीज पे बॉयल होता है। साइंटिफिक फैक्ट है, ये आगे पीछे हो ही नहीं सकता, तो इसको भी हम सिंपल टेंस यूज़ करके ही बताएंगे। ये नहीं कहेंगे कि द वाटर विल ऑलवेज बॉयल एट 100। नो, दैट्स ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ये आपकी उर्दू से अंग्रेज़ी की ट्रांसलेशन तो हो सकती है, जैसे आप उर्दू में कहेंगे पानी हमेशा 100 डिग्री पे ही बॉयल होगा। इसको आप अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट यूँ कभी भी नहीं करेंगे कि द वाटर विल ऑलवेज बॉयल एट 100। नो, दैट्स रॉन्ग।
इसको हमेशा कहेंगे द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्रीज। ऑलराइट, आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड इट प्रीटी मच। बाकी हम जब असाइनमेंट में इसको यूज़ करेंगे तो आपको इसके बाकी यूजेस भी क्लियर हो जाएंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। वेलकम टू द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इट्स हैपनिंग हियर। हमने इसको यहाँ से ही स्टार्ट कर दिया हैपन के साथ ing लगा के। ऑलराइट, सो इट्स हैपनिंग हियर। इसमें भी हम 3 तरह के सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव या अफर्मेटिव हैं, नेगेटिव हैं, इंटरोगेटिव्स हैं, और इसमें भी इंग्रेडिएंट्स हमारे ऑलमोस्ट सेम हैं। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं मेन इंग्रेडिएंट्स की जिनके बगैर कॉन्टिन्यूस पूरा नहीं होता, विच इज़ सब्जेक्ट। और कॉन्टिन्यूस में हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनके साथ हम प्ले कर सकते हैं, इज़, एम और आर। उसके बाद हम मेन वर्ब लगाएंगे अपना, उसकी फर्स्ट फॉर्म ही होगी मेन वर्ब की, और उसके साथ बस हम ing ऐड कर देंगे, और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो लगा देंगे, और अगर नहीं है तो उसको ख़त्म कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। अब मैंने ही के साथ इज़ लगा दिया। अगर मैं ही को रिप्लेस करूँ शी लगा के तो उसके साथ भी मैं इज़ ही लगाऊंगी, शी इज़ प्लेइंग फुटबॉल। अगर मैं इट लगा दूँ तो फिर भी मैं इज़ ही लगाऊंगी, इट इज़ प्लेइंग फुटबॉल। लेकिन अगर मैं सब्जेक्ट को चेंज करके आई लगा दूँ तो फिर क्या होगा? जस्ट टेक अ गेस फॉर अ व्हाइल, और मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। जब आप आई यूज़ करें तो आई के साथ कभी भी इज़ या आर नहीं आएगा, आई के साथ हमेशा आएगा एम। I am playing football, I am eating rice, I am watching a film, I am teasing my little brother and etc. I के साथ हमेशा am आएगा, कभी भी is या are नहीं आएगा। he, she और it के साथ हमेशा is आएगा, because ये singular third person है। लेकिन अगर मैं we, you और they की बात करूँ, 3 सब्जेक्ट्स मैंने बताए हैं। कौन से बताए हैं? we, you और they। इनके साथ सिर्फ और सिर्फ आर आएगा। यू इज़ प्लेइंग कभी भी नहीं होता, यू आर प्लेइंग होता है। दे इज़ प्लेइंग, दे एम प्लेइंग, दोनों रॉन्ग, दे आर प्लेइंग। इसी तरह वी के साथ भी हमेशा आर आएगा, कभी भी इज़ या एम नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? हमें उर्दू में भी इनका मतलब पता है। इज़ का मतलब है हैं, इस का मतलब है, एम का मतलब है हूँ, और आर का मतलब है हैं। प्रीटी मच ऑब्वियस है कि इज़ है का मतलब है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, जो भी होगा। एम का मतलब है कि हमेशा हूँ का वर्ड जो है वो अपने लिए सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं हम, तो जब भी आएगा एम लगेगा साथ। और आर का मतलब उर्दू में होता है, तो इसका मतलब प्रीटी ऑब्वियस है कि हमारे पास जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तभी हम आर यूज़ करेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने में फ़र्क सिर्फ कहाँ पे आ रहा है कि आप सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब यूज़ करने से पहले सिर्फ एक छोटा सा प्यारा सा नॉट लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ही इज़ नॉट डूइंग हिज होमवर्क। इसी तरह जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो वही सेम प्रैक्टिस है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी। आपने जिस तरह का भी क्वेश्चन बनाना है, चाहे वो येस नो क्वेश्चन है, चॉइस क्वेश्चन है, या टैग क्वेश्चन हैं, या WH क्वेश्चन हैं, उन सब में जो भी आपका स्पेशल कैरेक्टर है क्वेश्चन का वो पहले लगेगा। फॉर एग्जांपल, हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाएगा, या आपके पास जो WH वर्ड है वो पहले लग जाएंगे, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, जिसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हो, वो लगा के ऑब्वियसली द क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जांपल, इज़ ही प्लेइंग फुटबॉल, इज़ ही डूइंग हिज होमवर्क। अब यहाँ पे भी आप नोट करो कि सब्जेक्ट को देखते हुए मैंने हेल्पिंग वर्ब चूज़ किया है। ही के साथ इज़ लग सकता है, लेकिन इज़ आई प्लेइंग फुटबॉल कभी भी नहीं होगा। एम आई प्लेइंग फुटबॉल, एम आई वॉचिंग अ ड्रामा, एम आई क्राइंग, एम आई लाफिंग। और इसी तरह अगर मैं दे लगा दूँ तो उसके साथ इज़ एम दोनों नहीं आएंगे। आर दे वॉचिंग अ ड्रामा, आर दे गोइंग टू स्कूल, आर दे डूइंग देयर होमवर्क। तो आपने सब्जेक्ट का ख्याल रखना है कि इज़ हमेशा ही, शी और इट के साथ, आई के साथ एम, और यू, वी और दे, इन 3 के साथ आर। तो आपने सब्जेक्ट को देख के हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि टैग क्वेश्चन बनाए इसका, जैसे हमने टैग क्वेश्चन प्रेजेंट सिंपल का बनाया था कि यू लाइक हॉट चॉकलेट, डोंट यू,
इसी तरह अगर मैं कहूँ कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, दोनों एक ही चीज़ के दो नाम हैं। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यूज़ करके आप टैग क्वेश्चंस बनाएं तो किस तरह बनाएंगे। अब ये आपकी असाइनमेंट है कि आपने किस तरह बनानी है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, इज़न्ट ही। सिंपल। अब इसी पैटर्न को फॉलो करके आप प्रोजेक्ट वर्क में क्वेश्चंस भी करेंगे। ऑलराइट, कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दी हुई हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। स्टेटमेंट वाला जो कॉलम है उसमें आपको अफर्मेटिव या पॉजिटिव सिंपल सेंटेंसेस दिए हुए हैं। I am eating, she is arriving, we are leaving। yes no क्वेश्चन कैसे बना हुआ है उसका, am I eating। सिंपल, आप देख सकते हैं उसमें क्या हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में, दोनों की जगह स्विच कर दी है और कुछ भी नहीं किया, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। इसी तरह अगर उसका WH क्वेश्चन बनाया हुआ है तो आपने एम को भी वहीं रहने दिया, आपने आई को भी और ईटिंग को भी, सब अपनी अपनी जगह पे, सिर्फ आपने उसके साथ एक WH वर्ड ऐड कर दिया एंड दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी। इसी तरह अगर आपने सिंपल स्टेटमेंट को नेगेटिव बनाना है तो आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद एक छोटा सा नॉट लगा देते हो। ये सिर्फ इसमें फ़र्क है। अब इस टेबल को देखते हुए आपने प्रोजेक्ट वर्क में जितनी भी एक्सरसाइज है उसको यही सेम पैटर्न फॉलो करते हुए आपने सॉल्व करना है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की भी कुछ यूजेस हैं, जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल के यूजेस बताए कि कहाँ पे कौन सी, अगर किस किस्म की बात आप कर रहे हैं तो आप प्रेजेंट सिंपल यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस कहाँ यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई टेम्परेरी हैबिट है, जैसे कि आई एम नॉट वेरी गुड एंड फॉन्ड ऑफ ईटिंग, कि मुझे खाने का कभी भी ज़्यादा शौक नहीं रहा, लेकिन आजकल पता नहीं क्या बात है कि मैं बहुत ज़्यादा खा रही हूँ। तो इससे क्या साबित हुआ कि मेरी टेम्परेरी हैबिट है, यानी शुरू से नहीं है ये आदत, अभी कुछ दिनों में बन गई है, तो ये मेरी टेम्परेरी हैबिट है। तो इसको यूज़ करने के लिए मैं कहूँगी आई एम ईटिंग अ लॉट दीज डेज, और आई एम ईटिंग अ लॉट एट द मोमेंट। इन दोनों सूरत में मैं हमेशा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस यूज़ करूँगी, यानी मैंने मेन वर्ब के साथ ING फॉर्म लगा दिया। इसी तरह कोई टेम्पररी सिचुएशन, एंड प्लीज़ टेक अ नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, और ये इस पर क्वेश्चन भी होंगे। टेम्पररी सिचुएशन जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसमें भी आप हमेशा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक बहुत ये टेक्निकल पॉइंट है आपका समझने के लिए। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं वेयर डू यू लिव, तो मैं अगर इसका आंसर कर रही हूँ कि आई लिव इन लाहौर, या इसका आंसर करने का तरीका ये हो सकता है आई एम लिविंग इन लाहौर। अब अगर आपसे कोई उर्दू स्पीकिंग ये सवाल कर रहा है, फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान के इकोसिस्टम की बात करें, आपसे कोई सवाल कर रही हूँ मैं वेयर डू यू लिव, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहेंगे आई लिव इन लाहौर, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कहेंगे आई एम लिविंग इन लाहौर। और आपके नज़दीक मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स के नज़दीक इसका एक ही मतलब है कि मैं लाहौर में रहता हूँ या रहती हूँ, बट नेटिव अमेरिकन्स इस तरह नहीं बोलते। नेटिव अमेरिकन्स के नज़दीक इन दो फ़िक्रों का दो अलग अलग मतलब है। कैसे? जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर अ व्हाइल, जस्ट गिव इट अ सेकेंड एंड देन आई विल एक्सप्लेन। ऑलराइट, मैंने कहा आई लिव इन लाहौर। जब मैं इसको मतलब एक्सप्लेन करूँगी किसी नेटिव अमेरिकन को, अगर मैं ये जवाब दूँ कि आई लिव इन लाहौर, तो वो क्या परसीव करेगा कि मैं हमेशा से लाहौर में रहती हूँ। लेकिन अगर मैं इसे कहूँ आई एम लिविंग इन लाहौर, तो उससे वो ये परसीव करेगा कि मैं पहले कहीं और रहती थी, अब मैं कुछ टाइम के लिए टेम्परेरीली मैं लाहौर में रह रही हूँ, और मे बी मेरा दोबारा कहीं मूव करने का इरादा है। तो ये दो डिफरेंट मतलब हैं, जबकि हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान के सेटिंग में इन दोनों चीज़ों का एक ही मतलब लेते हैं। तो आपने ये पॉइंट टेक्निकल है बहुत, इसको अंडरस्टैंड करना है कि आई लिव इन लाहौर एंड आई एम लिविंग इन लाहौर दो बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा अननोइंग हैबिट्स, आई एम श्योर हम सब के इर्द गिर्द सिबलिंग्स ऐसे होते हैं, या स्पाउस होते हैं, या फ्रेंड्स होते हैं, जिनकी कुछ ना कुछ हैबिट्स हमें अनोइंग लगती हैं। तो उन अनोइंग हैबिट्स को भी जब हम उनके बारे में बात करते हैं तो उसमें प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस लगता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर फॉरएवर लूजिंग योर कीज़, यानी आपकी तो हमेशा ही चाबियाँ गुम जाती हैं। यू आर फॉरएवर लूजिंग,
लूजिंग में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लूज और उसके साथ ing लूजिंग। तो हमेशा अनोइंग हैबिट्स को एक्सप्लेन करने के लिए यू आर ऑलवेज क्राइंग, यू आर ऑलवेज वाइनिंग अबाउट लिटिल स्टफ, यानी आप हर छोटी छोटी बात के बारे में परेशान होते हैं, उसके बारे में रोते धोते रहते हैं। यू आर ऑलवेज वाइनिंग अबाउट लिटिल स्टफ। तो वाइन करना यानी रोना, शोर मचाना, ये एक वर्ब है और मैंने ing लगा के इसके साथ इसको वाइनिंग बना दिया। यू आर ऑलवेज वाइनिंग अबाउट लिटिल स्टफ, पेटी स्टफ। अच्छा जी, डेफिनेट फ्यूचर प्लान्स में जैसे हमने कहा कि प्रेजेंट सिंपल यूज़ होता है, वैसे ही सम कॉन्टेक्स्ट आर ऑल्सो यूजिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। आई एम मीटिंग माई फादर टुमारो। यू कैन ऑल्सो यूज लेटर, 7 PM, टुनाइट, ट्यूसडे, यानी जो भी डेफिनेट फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम है वो आप उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। आगे के लेक्चर्स में हम एक और इंटरेस्टिंग बात डिस्कस करेंगे कि जब हम टाइम बता रहे होते हैं तो हम सिंस और फॉर इस्तेमाल करते हैं। तो अक्सर बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत वेल एजुकेटेड प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स जो हैं वो सिंस और फॉर के इस्तेमाल में मिक्स कर जाते हैं। तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह कवर करेंगे कि कौन सी चीज़ के साथ फॉर आता है और कौन से टाइम के साथ सिंस आता है। अच्छा जी, टिप ऑफ द डे के लिए मैंने आज से इसमें एक ईडियम ऐड करना शुरू किया है ताकि आप लोग इसको भी अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सको, या जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगी उसमें भी आप इस्तेमाल करो। आपने अगर नोट किया हो तो मैंने ग्रुप में जो पोस्ट किया था उसमें भी एक ईडियम यूज़ किया था और आज की व्हाट्सएप की कम्युनिकेशन में भी मैंने 2 बार कुछ ईडियम्स यूज़ किए हैं। ईडियम यूज़ करने का मकसद क्या है? जब भी आप अपनी कोई बात किसी को कन्वे कर रहे हो तो आप उसमें वज़न डालने के लिए कोई मुहावरा, कोई ज़रबुल मिसल या फिर कोई इडियोमैटिक एक्सप्रेशन यूज़ करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो मैं कहूँगी आई एम वेरी हंग्री। ये एक सिंपल प्लेन सेंटेंस है अंग्रेज़ी का और ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन इसको मैं ब्यूटीफाई कैसे कर सकती हूँ, मतलब मैं इसका रिटन या वर्बल एक्सप्रेशन खूबसूरत कैसे बना सकती हूँ कि पता चले कि ये बहुत एक सीजनड और कल्चर्ड इंसान है जिसको लैंग्वेज की थोड़ी बहुत नो हाउ है। तो मैं इसको आई एम वेरी हंग्री कहने के बजाय एनालॉजी इसको दे के कहूँगी आई एम हंग्री एज अ हॉर्स, यानी कि मुझे बहुत ही शदीद भूख लगी है, आई एम हंग्री एज अ हॉर्स। इसी तरह ये तो बहुत आसान लेक्चर है और बहुत आसान असाइनमेंट है, तो इसको मैं कहूँगी दिस इज़ जस्ट पीनट्स, इट्स वेरी ईजी, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर यू। और यही मैंने उसमें भी यूज़ किया। तो इडियोमैटिक एक्सप्रेशन जो है वो किसी भी फ़िक्रे को, किसी भी पीस ऑफ कम्युनिकेशन को ब्यूटीफाई करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज का इडियम है इनटू द स्विंग ऑफ थिंग्स। जैसे कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको गूगल क्लासरूम में इशू आ रहा है, तो मैं उन सब को जितनी भी गाइडेंस और एडवाइस दे रही हूँ मैं उसके साथ उनको कह रही हूँ जस्ट डोंट पैनिक, डोंट वरी अबाउट इट, यू विल गेट द स्विंग ऑफ इट, विच मीन्स कि आपको आदत हो जाएगी, आप यूज टू हो जाओगे इस न्यू सिचुएशन के, फिर आपको ईजी लगेगा एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट दैट यू कैन डील विद गूगल क्लासरूम एंड प्रोजेक्ट वर्क। After a month at my new job, I finally got into the swing of things. यानी मुझे 1 महीना लगा अपनी नई जॉब में चीज़ों को समझने में और फिर मैंने उनको आसानी से हैंडल कर लिया। तो ये आपने अब आज से अपनी कम्युनिकेशन में जहाँ पे भी आपको मौका मिले वो आपने ये वर्ड, ये इडियम आपने यूज़ करना है और फिर आपने मुझे बताना है कि आपने किस फिक्रे में यूज़ किया। लेट्स टॉक अबाउट प्रोजेक्ट वर्क 2। मैंने यहाँ पे 2 जगह पे पिन पॉइंट किया कि आप प्रोजेक्ट वर्क में इन सारे रूल्स का इस्तेमाल करेंगे एंड आई एम श्योर कि प्रोजेक्ट वर्क आपके लिए इजी होगा। और डेडलाइन का ख्याल रखना है इसमें। डेली डोज, ये जो अभी इडियोमैटिक एक्सप्रेशन की हमने बात की है, ये आपकी डेली डोज का हिस्सा है। आपने दिन में सुबह, दोपहर, शाम 3 times a day, विच मीन्स TD आपने इसको यूज़ करना है। TD डॉक्टर्स की एक टर्म है जो वो मेडिसिन देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोई डॉक्टर को विज़िट किया, उसने आपको एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया है, तो जो मेडिसिन उन्होंने लिख के दी होगी उसके साथ 3 तरह के वर्ड्स वो लिख सकते हैं। अगर वो उर्दू में लिखेंगे तो ऑब्वियसली सुबह, दोपहर, शाम लिखते हैं, लेकिन अगर अंग्रेज़ी में खालिस मेडिकल टर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं वो OD, BD और TD। OD का मतलब होता है once a day, यानी दिन में 1 बार। BD का मतलब होता है दिन में 2 बार और TD का मतलब होता है thrice a day, दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम। तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने सोचा कि आपको दे दूं ताकि अगर आप प्रिस्क्रिप्शन भी पढ़ रहे हो तो आप यू विल नॉट वंडर एनी मोर कि ये OD, BD और TD क्या लिखा हुआ है।
वो डेली डोज की अमाउंट होती है कि 1 बार लेनी है, 2 बार लेनी है या 3 बार लेनी है। और ये जो इडियोमैटिक एक्सप्रेशन मैंने आपको आज बताया है, ये आपने अब दिन में 3 बार यानी TD, थ्राइस अ डे आपने ये यूज़ करना है और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं करना। ये शर्त है बहुत इंपॉर्टेंट। आपने हमेशा इसको कॉन्टेक्चुअली यूज़ करना है और फिर डू लेट मी नो कि आपने इनको कौन से सेंटेंसेस बना के इनमें यूज़ किया। Thank you so much, and I really look forward to all the project work submissions in time, inshallah, and see you in the next lecture.